कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सेफ होंगे. ओके, सो टुडे आई हैव ब्रॉट अ न्यू चैप्टर फॉर यू, दैट इज रैशनल नंबर. ओके, दिस इज फॉर 8th स्टैंडर्ड CBSE रैशनल नंबर, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर. ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे अपकमिंग वीडियोस की. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स. ठीक, what is rational number? Okay, before starting the rational number we will see for other numbers also. For example, natural numbers. ठीक है, what is natural numbers? You all know the number which is starting from 1 2 3 4 5 and they are never ending numbers. Means they are starting from 1 and they are never ending numbers. Now after natural number it comes whole numbers. ठीक है, what is whole numbers? The number which is starting from 0 and including all the positive numbers. ठीक है, you can see natural number means all the positive numbers. Whole numbers are starting from 0 including all the positive number. After whole number it comes integers. ठीक है, integers means all the positive numbers, all the negative numbers including 0. Means when you will move towards right of the 0, all the positive number will come, they are never ending, and when you will move on the left hand side of the 0, you will get all the negative numbers, they are also never ending. ठीक है, so integers. Now after natural number, whole numbers and integers, another number comes that is called rational number. The number in the form of P upon Q, or you can say in a fraction form, are called rational numbers. They are called rational numbers. ठीक है, it means what? It means the number which is written in the fraction form, 2 upon 3, 7 upon 5, minus 3 upon 2, they all are rational number. It means see the natural numbers. Natural numbers क्या है? 1 2 3 4 5. Okay, so and see the whole numbers also, 0 including all positive number. See the integers, all the positive, all the negative, 0. It means can we say that natural numbers are rational number? You will simply say that no sir, we cannot say, क्योंकि वहाँ पर we don't have fraction form, simply they are numbers 1 2 3 and 4 and all. So what will you do? See, we can write 1 upon 1, we can make it in a fraction. 1 upon 1 means 1 ही होता है, 2 upon 1, 3 upon 1, 4 upon 1, 5 upon 1. Similarly for whole numbers also, 0 upon anything 0 ही होगा, तो 0 upon 1 लिख सकते हैं, 1 upon 1 will be 1. ठीक है, so we can write all in the fraction form as well as all the integers in a fraction form. ठीक, इनकी वैल्यूज नहीं चेंज हो रही है. -3 upon 1 will give you -3 only, -2 upon 1 will give you -2 only, 2 upon 1 will give you 2 only. Okay, so upon 1 लिखने से कोई वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, but we can write them in the fraction form. Fraction form means P upon Q form. It means they all are now rational numbers. तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि all natural numbers, whole numbers, integers are rational numbers. ठीक है, rational numbers because we can write them in a P upon Q form, fraction form, so they all are the rational number. So बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी आपको नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे, 2 upon 3, -3 upon 7, so those all numbers are rational numbers. इसको आप नोट कर लीजिए. Now we will see some properties of rational number. So the first property
इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, किसी हियर वी आर कंपेयरिंग होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। ठीक है, सो फर्स्ट एडिशन, वी आर डूइंग द एडिशन। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो होल नंबर्स है, होल नंबर्स मीन्स नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर। एडिशन में आप देखो यू आर टेकिंग टू होल नंबर्स, 2 + 3 you are getting 5, again we are having two whole numbers 5, 4 + 3 भी लोगे तो भी आप you are getting 7, so you can see that 2 3 whole number, 3 2 whole number, 4 3 whole numbers, and after addition of whole numbers you are getting again whole number। ठीक है, so addition when you add two whole numbers and finally you are getting whole numbers, so that is called, you can say that whole numbers are addition, whole numbers are closed under addition। आप क्या बोल सकते हो, whole numbers are closed under addition, लिख सकते हो ना, whole numbers are closed under addition। ठीक, आप बोल सकते हो कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब व्हेन यू ऐड टू होल नंबर्स यू विल बी गेटिंग होल नंबर। नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए आप देखो 2 - 3 करोगे तो -1 मिलेगा, बाकी 3 - 2 करने पे +1 मिलता है। नाउ यू नो दैट 2 इज अ होल नंबर, 3 इज ऑल्सो होल नंबर, ये तो साइन बीच का है वो मत देखो, 2 होल नंबर 3 होल नंबर। ठीक है, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वन होल नंबर फ्रॉम अनदर होल नंबर, okay, if you are getting whole number then it is okay, but here we are not getting any whole number, this is integer, माइनस नंबर मिल रहा है। so सब्ट्रैक्ट करने पे, दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको होल नंबर नहीं मिल रहा है, आपको नेगेटिव मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, so 2 - 3 -1 दे रहा है, 3 - 2 +1 दे रहा है, इसका मतलब है कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन मतलब आप दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो होल नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा हमेशा। ठीक है, नाउ विल कम टू मल्टीप्लिकेशन। 2 3 = 6, 4 5 = 20, इट मीन्स 2 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर एंड 6 होल नंबर, 4 होल नंबर, 5 होल नंबर, 20 होल नंबर। इसका मतलब है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बहुत सिंपल सा है, आप कॉन्सेप्ट समझ लेना है बस। नाउ इन केस ऑफ डिवीजन, 4 / 2 किया तो यू विल बी गेटिंग 2, बट मैंने अगर 2 / 4 किया तो मुझे क्या मिल रहा है, हाफ। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो डिवीजन के केस में हियर वी आर नॉट गेटिंग होल नंबर, सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक, ये बात हम यहाँ तो हम लोग ने होल नंबर्स के बारे में देखा। नाउ विल कम टू इंटीजर्स। नाउ एडिशन फॉर इंटीजर्स। ठीक, व्हेन वी आर एडिंग टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0। सो आई हैव टेकन 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो -2 + 3 क्या होता है, +1, 3 प्लस माइनस माइनस, ये भी 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैटर ये नहीं करता है वैल्यू क्या आती है, उन्हें मैटर नहीं करता है कि सेम आ रही कि नहीं, मैटर ये करता है कि आफ्टर एडिंग टू इंटीजर इफ वी आर गेटिंग इंटीजर देन इट फॉलोज द रूल। ओके, सो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड। ठीक, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो दे आर क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है कि दो इंटीजर को ऐड करने पे हम लोग को इंटीजर ही मिल रहा है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट, तो -2 माइनस और ये ब्रैकेट में 3 है तो दोनों नेगेटिव है, तो -5 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5। तो देखो जब आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी इंटीजर मिल रहा है क्योंकि नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो इंटीजर, या फिर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे इफ यू आर गेटिंग पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव भी तो इंटीजर ही होता है। इसका मतलब है कि
दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे भी आपको इंटीजर ही मिल रहा है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक, ये भी हो गया। नाउ वी विल कम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या देखते हो आप, -2 × 3 -6, 3 2 -6। ठीक है, वैल्यूज तो कुछ भी, 4 × -3 भी आई कैन टेक। तो 4 भी क्या है, अगर अब मैं लूँगा तो 4 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, एंड 4 × -3 -12 अगेन इंटीजर। इसका मतलब है कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे फिर से इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब है इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर multiplication. Okay, now next one, 3 divided by 2, okay, and 2 divided by 3. So here this is 3 by 2 and this is 2 by 3, but they are not integer. Okay, they are not integer. Okay, so integers are not closed under division. जरूरी नहीं कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने के बाद इंटीजर ही मिले। समटाइम्स इट कैन हैपन, 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 मिलेगा, बट 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन मिल रहा है। फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर होता है, वो इंटीजर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ठीक, ये हो गया। नाउ कम टू द रैशनल नंबर। अगेन एडिशन जाते हैं। जब आपके पास दो रैशनल नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, 1/2 4/2, डिनोमिनेटर सेम है तो विल राइट 2 and 5/2। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे अगेन यू आर गेटिंग अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे सो यू विल राइट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक, दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ विल कम टू सब्ट्रैक्शन। देखो अब यहाँ पे मेन क्या है कि रैशनल नंबर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हाफ एक रैशनल नंबर है, 4/2 रैशनल नंबर है, उनको ऐड करने पे 5/2 जो मिल रहा है वो भी एक रैशनल नंबर है। जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो और यू आर गेटिंग रैशनल नंबर, सो दे आर क्लोज्ड, दे ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी, सो द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं सेकंड। डिनोमिनेटर सेम है 3, 4 - 2 इज 2/3। सो देखो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, और द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग इज अ रैशनल नंबर। सो आप यहाँ पे लिखोगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द मल्टीप्लिकेशन। देखो अगेन ये रैशनल नंबर है 2/3, 5/7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 5s are 10, 3 7s are 21, ये भी तो रैशनल नंबर है। सो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर multiplication. Okay, done. Now the last one, 2/3 divided by 4/5 and 4/5 divided by 2/3. अब यहाँ पे आप देखोगे so 2/3 divided by 4/5 है। so इसको जब आप सॉल्व करोगे 2/3 डिवीजन कर लोगे इसको 4/5। ठीक है, so बेसिकली क्या मिलने वाला है 8/15। एंड इस केस में भी क्या मिलेगा, ये 4/5 है, इंटू किया तो 3/2, इंटू डिविजन है ना, हमेशा व्हेन यू चेंज दिस साइन इस सामने वाला जो फ्रैक्शन होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। सो 12/10। ठीक, सो अगेन यू कैन सी दैट कि आपके पास ये रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर है, उसको आपने डिवाइड किया तो अगेन आपको क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर मिल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिविजन। रैशनल numbers are closed under division। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या सीखी कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपको एग्जैक्ट सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जब आप अंडर एडिशन जाते हो तो आप चाहे
होल नंबर्स ले लो, इंटीजर्स ले लो या रैशनल नंबर ले लो, व्हेन यू आर टेकिंग एनी टू होल नंबर्स ऐड कर रहे हो तो यू शुड गेट होल नंबर, व्हेन यू आर टेकिंग एनी टू इंटीजर उनको ऐड कर रहे हो तो इंटीजर ही मिलना चाहिए, व्हेन यू आर एडिंग एनी टू रैशनल नंबर उनको ऐड कर रहे हो तो आपको दो रैशनल ही मिलना चाहिए, तभी वो इस रूल को ओबे करेगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी आर गेटिंग 8/15, हियर वी आर गेटिंग 12/10, दे बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, तो वैल्यूज मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है 2/3 रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है, व्हेन वी हैव डिवाइडेड 2/3 by 4/5 वी आर गेटिंग अगेन अ रैशनल नंबर, that matters. So rational numbers are closed under division, मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही देगा। कॉपी कर लीजिए इसको। Hello students, so today I will explain you some more properties. The next property is commutativity. Okay, so what is commutativity, that we will see here. So we have three cases for whole numbers, for integers and for rational numbers. तो यहाँ पे देखो आप addition, first property addition देखते हैं. So 2 plus 3, commutativity means what? First plus second, then second plus first, and we should get the same value. Okay, so 2 plus 3 we are getting 5. आपने 3 फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर 5 मिल रहा है तो यू हैव टू डू सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, अगेन you should have the same value. Okay, then only we can see that this is commutativity under addition. Okay, okay, now in the basis of this we can say that addition is commutative, addition is commutative because we are getting the same value. तो आप लिख सकते हो कि addition is commutative, correct? ठीक, ओके, नाउ फिर से यहाँ पे आ जाओ, वी हैव टेकन 2 and 3, दो होल नंबर है, सेम एग्जांपल लिया है, 2 - 3 करेंगे तो -1 वी आर गेटिंग, बट 3 - 2 वी आर गेटिंग 1, तो वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ना। कम्यूटेटिविटी मतलब क्या होता है कि a + b = b + a, तो कम्यूटेटिव है। a + b a - b = b - a, नॉट पॉसिबल। देखो a - b और b - a किया तो वी आर नॉट गेटिंग द सेम वैल्यू, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, subtraction is not commutative, correct? now multiplication, देखो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू फर्स्ट, इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, सो वी विल राइट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मैं फुल नहीं लिख रहा हूँ, फुल समझ जाओ, ठीक है। Then for division, 3 divided by 2 we will be getting 3/2 and 2 divided by we will be getting 2/3, different values we are getting. इसका मतलब है division is not commutative, ठीक। ये हो गया होल नंबर्स के लिए। now we'll come to integers. integers मतलब होता है all the positive number, all the negative number 0, और वी कैन से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव नंबर लिया, एक पॉजिटिव लिया, आपको समझना है ये a है और ये b है, सो a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, ठीक है। -3 + 2 इज -1, 2 + -3 अगेन वी आर गेटिंग -1, ठीक है। इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। अगर आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो दिस ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे भी जो एडिशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, commutative, addition is commutative. Now we'll come for the subtraction. subtraction के लिए आ जाते हैं। subtraction के केस में क्या हो रहा है, ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, नाउ सब्ट्रैक्शन के केस में यू विल सी -3 -2 इज -5 एंड 2 - -3, देखो ये फर्स्ट माइनस है, सेकंड प्लस है, तो फिर फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो सेकंड माइनस फर्स्ट भी करेंगे, ओके। तो 2 माइनस प्लस, तो 2 + 3 इज 5, हियर वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू, सो वी विल राइट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके।
नाउ कम फॉर द मल्टीप्लिकेशन. देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू फर्स्ट, विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू, सेम मिलेगा, -6 -6. सो वी विल राइट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. मल्टीप्लिकेशन इज commutative. Now for this, -3 divided by 2 will be getting -3 by 2, and 2 divided by -3 -2 by 3. Here we both are the different values, so division is not commutative. Okay, now come there. रैशनल नंबर है, दैट इज वाई वी हैव रिटन इन फ्रैक्शन. ठीक है, सो 2/3 प्लस 7/3 बेस सेम है तो विल राइट वंस, 7 + 2 9, 7 + 2 9 हो गया. ठीक है, अगेन तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर ऐड किया, नाउ विल ऐड सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, अगेन वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू. सो हम लोग लिख सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव. रैशनल नंबर में भी एडिशन क्या है, इट इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड, सेकेंड प्लस फर्स्ट सेम मिल रहा है. ठीक है, बट फर्स्ट माइनस सेकेंड एंड सेकेंड माइनस फर्स्ट सेम नहीं होगा. ठीक है, डिफरेंट होगा. मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट होगा, और डिवीजन में नहीं होगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड और सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट. सो ओनली ये जो रूल है कम्यूटेटिविटी का वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो सकता है. ठीक है, नाउ विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन. डिनोमिनेटर सेम है तो विल राइट 1 3, 2 - 7 इज -5. डिनोमिनेटर अगेन सेम है, 7 - 2 इज 5. नाउ यू कैन सी दैट डिफरेंट वैल्यूज वी आर गेटिंग, एक माइनस में एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक, नाउ कम फॉर द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 7 = 14, 3 3 = 9. सेकेंड में भी देखो 7 2 = 14, 3 3 = 9. ओके, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर और सेकंड इंटू फर्स्ट नंबर. ठीक है, दोनों पे भी सेम आ रहा है, तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. ओके, नाउ कम फॉर द डिविजन. आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, so we'll get the different value, and second number divided by the first we will get the different value. डेफिनेटली बताने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि देखो रैशनल नंबर मतलब ज़रूरी नहीं है आप फ्रैक्शन में लिखो. यू कैन राइट 2 divided by 3. 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 2/1 होता है. 3 ऑल्सो रैशनल नंबर, 3/1 होता है. सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग 2/3 और 3/2 you will be getting different values. तो यहाँ पे भी देखो 3/7/3 को व्हेन यू विल डिवाइड बाय 2/3 तो आपको कुछ और वैल्यूज़ मिलेगी, एंड व्हेन यू विल डिवाइड 2/3/7/3 तो कुछ और वैल्यू मिलेगी. इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. ओके, सो आप इसको कॉपी कर लीजिए. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएटिविटी. ठीक है, एसोसिएटिविटी मीन्स क्या होता है कि ग्रुप टुगेदर, एक साथ ग्रुप करना, ग्रुपिंग करना. ठीक, फॉर एग्जाम्पल फॉर होल नंबर्स फर्स्ट वी विल सी, सपोज वी हैव 3 होल नंबर्स 2 3 4. ठीक है, सो आई हैव मेक अ ग्रुप ऑफ 2 and 3. ठीक है, तो आई हैव एडेड 2 and 3 फर्स्ट, 2 + 3 करेक्ट, 5 5 + 4 9. सो मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड को साथ में ऐड किया ब्रैकेट में, देन आई हैव एडेड द सम इनटू 4. ठीक है, इस सम को इस 4 में ऐड किया. यहाँ पे क्या किया, आई हैव मेक द 2 सेपरेट एंड आई हैव एडेड 3 and 4. तो अगेन 3 + 4 7, 7 + 2 9. सेम वैल्यू वी आर गेटिंग. ठीक है, सो वी कैन से दैट एडिशन इज एसोसिएटिव. एडिशन इज एसोसिएटिव. सेम हियर. ओके, अब यहाँ पे आप देखो वी हैव 3 नंबर्स 2 3 4. सो मैंने क्या किया, 3 - 4 किया ब्रैकेट में और उसके बाहर 2 लिखा है. सो 2 - 3 - 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. तो 3 - 4 इज -1 -1 प्लस दैट विल बी 3. यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व 2 - 3 दैट विल बी -1 एंड दिस इज -4 दैट इज -5. ओके, तो वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू. ओके, सेम वैल्यू नहीं मिल रही है. सो एसोसिएट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक, अब मैं थोड़ा
फटाफट लिखूंगा एक बार, ठीक। नाउ विल सी द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हो आई हैव टेकन 2 आउट, 3 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12, 12 2 = 24, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 2 और 3 को साथ में लिया, 4 को बाहर रखा, 2 3 = 6, 4 = 24, सेम आंसर मिलेगा, यस। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक। एसोसिएट करना, जैसे मेरे पास 3 नंबर है तो आई कैन ऐड 2 नंबर्स फर्स्ट, जैसे मुझे है 2 3 5, तो दिमाग में आगे क्या चलता है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो पहले आप 2 3 को ऐड करते हो, देन आप 4 को ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो आप एसोसिएट करो, किसी भी 2 को पहले ऐड करके तीसरे को बाद में उससे ऐड कर दोगे। सो देखो डिवीजन में क्या होता है, सो विल बी गेटिंग डिफरेंट वैल्यू, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड दिस, तो 2 / 3/4, क्योंकि 3 को 4 डिवाइड करें तो 3/4, तो 2 / 3/4 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, 2 / 3 पहले होगा, तो 2 / 3 / 4, दोनों डिफरेंट वैल्यूज दिख रही है। सो डिवीजन इज नॉट, सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू भी मिलेगा, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। डिवीजन आपका एसोसिएटिव नहीं है। नाउ कम फॉर इंटीजर्स। नाउ वी विल सी वी हैव 3 इंटीजर्स, -2 -3 एंड 1, ठीक है। -2 उसके पहले -3 एंड 1, तीनों को ऐड करेंगे तो -2 -3 इज -5, -5 में 1 ऐड करेंगे तो -4, ठीक है। अगेन -2 -3 इन दोनों को साथ में लिया, -5 + 1 -4, सो ये सेम आंसर मिल रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक, ये हो गया। देन कम फॉर द सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाओ, तो ये -2 बाहर है, ठीक, बीच में माइनस है, दोनों नेगेटिव, -4 माइनस प्लस, तो ये +4 हो जाएगा, -2, आंसर विल बी 2। नाउ इन दिस केस -2 माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा, -2 + 3 हो जाएगा ब्रैकेट में, एंड आउटसाइड इज -1, -3 - 2 इज वॉट 1, 1 - 1 इज 0। सो इसका मतलब क्या है, ये 2 मिल रहा है और ये 0 मिल रहा है, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, आप लिख लोगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, आप लिख लो, सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ हियर यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है, तो -2 है, -3 × -3, -6, अगेन -6 + 6 × 6, सेम, सही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव दिस केस, ठीक है। फॉर डिवीजन वी विल सी दिस इज 2, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, बाहर क्या है, -2 डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम -3/2, ठीक। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, इनटू करोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, सो फाइनली आंसर आपको मिलेगा -2 × 2 / -3, -4/3, माइनस गेट कैंसिल, तो इससे आपको 4/3 मिल रहा है, और इससे आपको क्या मिलेगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 2, 2/12, ठीक है। आप सॉल्व करके चेक कर लेना। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। रैशनल नंबर में आ जाओ, ये दोनों की वैल्यूज आपको सेम मिलेगी, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बिकॉज देखो इन दोनों को एडिशन में आपको हमेशा सेम मिलता है, ठीक। सो आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर के लिए क्या होगा, एडिशन इज एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन आप सेम सिमिलर करके देख लेना, ठीक है। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। सिमिलरली यू कैन डू फॉर दैट ऑल। नाउ विल सी सम मोर प्रॉपर्टीज, ओके। सो विल सी नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक, किसी भी नंबर का नेगेटिव, इसको वी ऑल्सो से एडिटिव इनवर्स, ठीक। नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो नोन एज द एडिटिव इनवर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 is -6, or we can write additive इनवर्स ऑफ -2 इज +2, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का नेगेटिव करना है, सी, और अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसका नेगेटिव करेंगे तो दैट विल बिकम नेगेटिव, और कोई नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है उसका नेगेटिव करेंगे तो दैट विल बिकम पॉजिटिव। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। फिर आता है रेसिप्रोकल, नेक्स्ट टर्म इज
रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल को वी सेज दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। नाउ अगर आपको बोला कि फाइंड रेसिप्रोकल बोल सकता है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बोथ दे कैन आस्क। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज, ठीक है। अगर बोला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज, तो हम लोग को लिखना है 1/2, उसको रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना है, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में वी हैव नथिंग, सो 2/1 लिखना है, उसको फ्लिप कर देना है। सिमिलरली एक और ले लेता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/2 इज -2/7, ठीक। इफ वी हैव -7/2, देखो माइनस ही लेना है, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू वी शुड गेट 1। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया आपने, 2 × हाफ को मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, -7/2 × -2/7 को मल्टीप्लाई किया, 7 -1 प्लस 1 1 सा, ठीक। सो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इफ वी आर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2। इफ वी हैव -7/2 वी कैन राइट -2/7, तो हो गया रेसिप्रोकल। ओके, नाउ we have some more important formulae rules. Okay, what are the distributivity? We will see distributivity of multiplication, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सिर्फ नाम बड़ा है, बाकी छोटा सा है ये, ठीक है। तो आप समझना है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांट देना है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से आपको उसको बांटना है, डिवाइड करना है। ओवर एडिशन, ओवर मतलब बीच में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो विल सी वन एग्जांपल हियर। सपोज लिखा हुआ है 2 × 3 + 5। सो ये 2 बाहर बैठा है, इट इज़ इन प्रोडक्ट फॉर्म विद द ब्रैकेट। सो 2 बोलेगा मुझे 3 भी चाहिए एंड मुझे 5 भी चाहिए, तो वंस 2 विल गो एंड मल्टीप्लाई टू 3, बीच का प्लस विल कम इन बिटवीन एंड 2 अगेन मल्टीप्लाई टू 5। देखो दोनों से वैल्यू सेम मिलेगी। यहाँ पे देखो 5 + 3 क्या होता है 8, 8 2 16, और सेपरेटली भी क्या आएगा 2 3 6 प्लस 2 5 10, 6 + 10 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। 2 क्या कर रहा है, 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 2 वंस गोइंग विथ 3, अगेन इट इज गोइंग विथ 5। एंड ओवर मतलब उनके बीच में साइन क्या होना चाहिए, एडिशन भी हो सकता है एंड सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सपोज वी है 4 × 8 - 7, तो 4 × 8 once it will come, minus का will come, then 4 × 7. So these are the 3 properties. Okay, now students we are going to solve exercise 1.1. So question number 1 is using appropriate properties find. So use properties which is given by me. Earlier I have given you some properties. Remember those properties and apply over here. So see the question number 1, -2/3 × 3/5 + 5/2 minus. Okay, so you will observe here we have a product, here we have a product. Okay, so you can observe what is common in both the product, 3/5 3/5, it is common in both. So देखो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, bring them together. So -2/3 × 3/5, दिस होल पार्ट विल कम इन, पूरा प्रोडक्ट फॉर्म है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। 3/5 × 1/6 + 5/2, करेक्ट। नाउ सी द प्रॉपर्टी, सी रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो व्हेन वी हैव 2 × 5 - 3, 2 × 5 - 3, so we will write 2 × 5
बीच में माइनस है, ठीक, एंड 2 इंटू 3. इफ सपोज दिस इज गिवन टू यू, तो यू नो व्हाट इज कॉमन, बीच में माइनस है, प्रोडक्ट है, व्हाट इज कॉमन, 2 इज कॉमन, वी विल टेक 2 आउट. क्या है यहाँ पे 5 है, देन वी माइनस, देन 3, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेकन 2 आउट. यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, सो वी हैव लेफ्ट 5 माइनस 3. 2 यहाँ से बाहर हो गया, 2 यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है. इसका मतलब है 2 बाहर है. सो देखो ये क्या हो गया, हियर 2 इज मल्टीप्लाइंग टू 5 एज वेल एज 2 इज मल्टीप्लाइंग टू 3. तो 2 5 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, और बीच में साइन है माइनस का. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में माइनस है. तो देखो कॉमन क्या है दोनों में, 3/5 3/5. तो विल टेक 3/5 आउट. बचा क्या, -2/3. यहाँ पे ये बच गया, बीच में माइनस है, और ये यहाँ क्या बच गया, 1/6 प्लस 5/. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है. सो हाउ विल यू सॉल्व, चेक द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, सो वी कैन मेक इट 6, ठीक है. वी विल मेक द डिफरेंट डिनोमिनेटर सेम. तो ये 6 है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग हियर डिनोमिनेटर बाय 2, तो ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर बाय 2. तो आपको क्या करना है, 3/5 इंटू -2 इंटू 2, 3 इंटू 2 -1/6 प्लस 5/2. सो आपको क्या मिलने वाला है, 3/5, ये हो गया -4/6 -1/6, करेक्ट, प्लस 5/2. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस. सो फिर से मैं यहाँ लिखूँगा 3/5 इंटू, डिनोमिनेटर सेम है 6, तो -4 -1 इज -5/6 प्लस 5/2. तो मल्टीप्लिकेशन है, दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट हो सकता है, 3 1 3, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्रॉस में कट हो सकता है. 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 1 5, ठीक है. सो वी हैव 1 इंटू -12, क्योंकि ये क्या बच गया, 1/1 इज 1, -1/2 प्लस 5/2. Now you can see anything multiplied to 1 will give the same number. Identity property. This is called identity property. What is identity property? When you are multiplying any number to 1, this is 3 1s, again you are getting the same number 3, 5 1s 5. तो से जब किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो द सेम नंबर यू विल बी गेटिंग. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 ही मिलने वाला है, प्लस 5/2. डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख लेना है, -1 प्लस 5 इज प्लस 4, 4/2 क्या होता है, 2. ठीक, हो गया ये वाला पार्ट. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस, 2/5 यहाँ पे भी है, 2/5 यहाँ पे भी है. तो पहले सब साथ में लिख लेते हैं. तो देखो जब आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन करना होता है. जैसे यहाँ पे क्या था, व्हाट वाज कॉमन, 3/5 वॉज कॉमन. तो यहाँ पे जब आपने 3/5 को बाहर लिखा, तो यहाँ पे आपको लिखना ऐसा मेंशन कर देना चाहिए. क्या मेंशन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, थोड़ा ठीक है, बिकॉज हियर वी हैव टू यूज़ द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखोगे तो भी अच्छा है. ठीक, सो 2/5 है, तो विल टेक दिस टर्म विथ दिस. सो राइट 2/5 इंटू -3/7 -3/7. ठीक है, ये लिख लिया, वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा. 1/14 इंटू 2/5, करेक्ट. ये पार्ट -1/6 तो 3/2. ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन, 2/5. Again you can see 2/5 is multiplying to this and 2/5 is multiplying to this, और बीच में क्या है, प्लस है. तो we can say that distributivity of multiplication over addition. So we will take 2/5 out. तो ब्रैकेट में क्या है, -3/7 प्लस 1/14 माइनस. ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 3, 6 2 12. ओके, नाउ विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ 14 है, तो वी कैन मेक इट 14 बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमिनेटर बाय 2. -3 इंटू 2, 7 इंटू 2 प्लस 1/14
माइनस 3/12. सो दिस इज 2/5 इंटू, देखो ये हो गया -6/14, -6/14, दिस इज 1/14, -6 + 1 इज -5/14. ठीक, ओके. नाउ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो व्हेन वी हैव मल्टीप्लिकेशन वी कैन कट 2 7 14, 5 1 जा, ठीक है. सो नाउ वी हैव -1/7 इन -1/7 -3/12. तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. -1/7 -3/12. ठीक. नाउ वी हैव द डिफरेंट denominators. So one more method we have, we can do the cross multiplication. 12 1 जा -12, 7 3 जा -21 and 12 7 जा इसका इसमें, इसका इसमें, इसका आपस में 54. You will multiply 12 into -1 -12, बीच में माइनस का साइन आएगा. 7 into 3 21 and 7 12 जा 84. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो दिस इज -33/84. फर्दर यू कैन डिड्यूस इट, आप इसको कट कर सकते हो टू विश. कैसे? 3 से कट कर सकते हो, -11/28. नाउ यू कैन कॉपी दिस. ओके, कॉपी कर लीजिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ each of the following. So we have to write additive inverse of each of the following. So what will be the additive inverse of 2/5? -2/5. Additive inverse of -5/9 will be 5/9. Additive inverse मैंने आपको बताया था, if it is plus you have to write minus. Okay, this is -6/5, -6/5, नेगेटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, दैट इज पॉजिटिव नंबर ओनली. कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ था कि दोनों नेगेटिव है. दिस इज पॉजिटिव नंबर, सो एडिटिव इनवर्स विल बी -6/5. एंड ऑलवेज रिमेंबर यू कैन राइट -6/5 और 6/-5 ऑल्सो. दे बोथ आर सेम. तो ओरिजिनल नंबर इज 6/5 और उसका एडिटिव इनवर्स इज -6/5. आई एम नॉट राइटिंग एनी स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना, ठीक है. So you can write additive inverse of 2/5 is -2/5. Okay, here 2/-9, so you will write 2/9 because already minus is here, so you will write in positive form. Minus is here, you will write in positive form. Okay, additive inverse, very simple is this. Now we have to verify कि देखो माइनस का साइन मतलब एडिटिव इनवर्स. सो यहाँ पे माइनस का माइनस है, एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है. अभी आप समझोगे. सो यहाँ देखो क्या दिया है, वी हैव टू वेरीफाई कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस. ये आपको प्रूफ करना है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. तो आप लिखोगे, राइट वन, आई एम डूइंग द फर्स्ट वन, एडिटिव इनवर्स ऑफ x 11/15 इज -x इक्वल टू -11/15. ठीक, पहला स्टेप आप समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम सेइंग. We have given x equal to 11/15 which is positive, so I will write additive inverse of this. इसका additive inverse क्या होगा, x के साथ माइनस, इसके साथ भी माइनस, ठीक है. yes, I have written. अच्छा, now we will see that additive inverse का प्रॉपर्टी क्या होता है. 2 का additive inverse क्या होगा, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ. additive inverse of 2 is -2, प्लस का additive inverse माइनस, उसका एकदम अपोजिट. अगर मैं किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करूँ तो विल बी गेटिंग 0. सही है. अगर मैं किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करूँ तो हमको क्या मिलेगा, ऑलवेज विल बी गेटिंग 0. बिकॉज अगर मुझे -2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा, +2. तो -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा. तो मैं जब किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूँगा तो ऑलवेज विल बी गेटिंग 0. ठीक. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर फाइंड किया. मैं क्या करूँगा, उस गिवन नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड कर लूँगा और मुझे पता है 0 है. ठीक है. 11/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -11/5 इज 0. ठीक है. इसका मतलब अगर मैं बोलूँ राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. इफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/15 इज -11/15, सो आई कैन से दैट कि -11/15 का भी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 11/15. क्योंकि अगर इसका एडिटिव इनवर्स ये है तो इसका एडिटिव इनवर्स ये है.
ठीक है, आर यू गेटिंग? तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 इज 11/15। इससे प्रूफ होता है अगर इस नंबर में इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करने पे 0 आता है तो इस नंबर में भी इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करने पे 0 आएगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/5 इज दिस। तो देखो एडिटिव इनवर्स बोलते ही माइनस आ जाता है, तो माइनस ऑफ -11/15 माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस x इक्वल टू x। सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर सेकेंड वन आप ट्राई कर लेना, ओके। सेकेंड वन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, सेकेंड वन इज होमवर्क फॉर यू friends. Now the next question is question number 4. Find multiplicative inverse of the following. What is multiplicative inverse? If we have 2/3, so multiplicative inverse of 2/3 उसका reciprocal कर दो 3/2. So we have -13, so we don't have anything in denominator, so -1/30, ठीक है। This is called multiplicative inverse या फिर इसको reciprocal भी बोल सकते हैं। If we have -13/9, 19, so you'll write -19/13. If we have 1/5, we can write 5/1 or 5 only. Okay. Now in this case we have to first multiply because आपके पास दो नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस एंड 8 7 ज़ा 56। ओके, सो इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 56/15। Now come to that. Okay, name the property under multiplication used in each of the following. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई आपको बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, सी द फर्स्ट वन। अच्छा, नाउ एक प्रॉपर्टी और है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट द सेम नंबर। 2 1 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8। सो अगर मैं 2 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 2 विथ 1, मल्टीप्लाई करें ना, ओके। एंड सेकेंड वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप 2 में 0 ऐड करते हो, 2 में क्या ऐड करते हो? 0 ऐड करते हो, अगेन यू विल बी गेटिंग 2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 जो होता है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो होता है वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। क्योंकि 1 बोलता है मैं किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सो आई विल गिव यू द सेम नंबर, और 0 बोलता है कि इफ़ आई विल बी एडेड टू एनी नंबर आई विल गिव यू द सेम नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और एडिटिव आइडेंटिटी होता है, आप नोट कर लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी है। सो यू कैन सी -4/5 1 ज़ा या 1 इंटू -4/5, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक, करेक्ट, ओके। See the second one. Here we have -13/17 into -2/7 equal to -2/7 into -13/17. Okay, first number into second number and second number into first number. तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड एंड सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेम आंसर मिलेगा। तो दिस इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप बोलते सर दिस इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, क्योंकि 2 + 3 5, 3 + 2 5, सेम आंसर। 2 × 3 6, 3 × 2 6। तो जब इंटू हो गया तो हो गया कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन होता तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ द लास्ट वन। अभी आप यहाँ नोटिस करो -19/29 है, और ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय इट्स रेसिप्रोकल आपको हमेशा 1 मिलेगा। कैसे? 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, 1 मिला, ठीक है। जब आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 मिलता है। उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। Now we will see the next question, that is question number 6. Multiply 6/13 by reciprocal of this. Okay, so we have to multiply 6/13 by what? By the reciprocal of this.
if we want to do a reciprocal of any number, so simply we have to invert that number. Suppose we have given 2 by 3, so reciprocal of 2 by 3 will be 3 by 2, and suppose it is given with a negative sign, minus 2 by 3, so it will become minus, so if it is minus 2 by 3, so it will become minus 3 by 2. Okay, so simply what will you do? Multiply. So here I will write 6 upon 13 into, in bracket I will write रेसिप्रोकल, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16. So next is what? 6 upon 13 into reciprocal of this will be minus 16 upon 7. Reciprocal of minus 7 upon 16 is minus 16 upon 7. Okay, now simply we will multiply. 16 6 are 96, 13 7 are 91. This is the answer. Now come to the next question. Tell what property allow you to compute this as a this. Okay, अब आप नोटिस करोगे here we have 1 upon 3 into 6 into 4 by 3, but here you can see a group of 2 numbers. ठीक है, एक नंबर बाहर है एंड बाकी 2 नंबर दे आर इनसाइड द ब्रैकेट. आइदर यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई द आंसर इनटू द थर्ड वन. ठीक है, या फिर आप एक ग्रुप में बना के कर सकते हो, जिसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. हम आपने देखा था, हियर यू कैन सी फर्स्ट नंबर इज आउटसाइड एंड वी हैव टेकन फर्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, द वट एवर आंसर विल कम वी हैव टू मल्टीप्लाई इन दिस. वहाँ पे क्या किया है, 1 upon 3 into 6 लिया है and whatever answer will come we will multiply in this. So this property is called associate. क्या एक साथ लाया है, associative under multiplication, associative under multiplication. ठीक, ये आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बताना है, सॉल्व करना हो तो सिंपली यू कैन सॉल्व, बट यहाँ पे आपको सिर्फ बोला है टू टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस. सो दिस इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अगर यहाँ पे सब जगह प्लस होता तो आप लिख सकते थे कि एसोसिएटिव अंडर एडिशन. क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इज 8 upon 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1 upon 8? वाई और वाई नॉट. आपको बताना है कि क्या 8 upon 9 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सी, दिस इज प्लस नंबर, दिस इज माइनस नंबर. तो प्लस का कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस में नहीं हो सकता. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्लस का माइनस में नहीं हो सकता. मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्हेनेवर एडिटिव इनवर्स प्लस का माइनस होता है. ठीक है, इसका मतलब है कि आप सॉल्व करने से पहले ही विल कम टू नो दैट यस नो. ठीक है, दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो देन ऑल्सो विल सॉल्व. तो दिस इज 8 by 9. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व दिस -1 and 1 by 8. सो -8 1 जा 8 8 plus 1 9. so this will come -9 by 8. okay, अगर ये माइनस नहीं होता, okay, suppose this is not a minus, 9 by 8, so we can say that कि 9 by 8 जो है it is multiplicative inverse of 8 by 9, या बोल सकते हो कि 8 by 9 is the multiplicative inverse of 9 by 8, but here it is negative side, so we'll write no. ना, because here negative sign comes, लिख सकते हो with 9 by 8. ठीक है, so that is why this is not a multiplicative inverse. Now we will come to this. Is 0.3 the multiplicative inverse of this? okay, तो first of all हम लोग देखते हैं 0.3 होता क्या है. ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. जब पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली वी कैन नॉट से दैट, देन वी हैव टू चेक. यहाँ पे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकते. अगर दोनों नेगेटिव होता तो पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड वी विल चेक. ओके, बट हियर 0.3 मीन्स व्हाट? सी, यू कैन राइट इन अ, दिस इज डेसिमल फॉर्म है, फ्रैक्शन में लिख सकते हो 3/10. 0.3 मतलब 3/10, डेसिमल के बाद एक प्लेस है. सो मैंने आपको समझाया था व्हेन वी हैव वन प्लेस आफ्टर द डेसिमल, सो वी विल राइट 10
in the denominator. So this is 3 by 10. Okay, now ये हो गया. Now we'll come to this 3 and 1 by 3. 3 and 1 by 3. What is 3 and 1 by 3? Okay, so 3 3 is a 9. 9 plus 1 10. 10 by 3. Okay, now multiply these two. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे we are getting 1. ठीक है, we are getting 1. Then both are multiplicative inverse of each other. So 3 upon 10, 10 upon 3. Yes, 10 1 जा 3 1 जा 1. So बोल सकते हैं yes 0.3 is the multiply. Yes 0.3 is multiplicative inverse of 3 and 1 by 3. Similarly यहाँ पे भी आप कर सकते थे. Here we are getting this is 8 by 9 correct, and जो आपको मिला that is -9 by 8. So we are getting -1. ठीक है, so -1 मिल रहा है, so multiplicative inverse नहीं हो सकता. ठीक है, so again you can write here we are getting -1. ठीक है, so this is not a multiplicative inverse and this is a multiplicative inverse. Now the next question is question number 10. Here you have to state the answer. The rational number that does not have reciprocal. ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं होता है. ठीक है, वी कैन से 0 बिकॉज सी 0 इज अ रैशनल नंबर बट वी कैन नॉट राइट, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 बट 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट. 0 का रैशनल नंबर इज 1/0 बट 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट. सो आंसर इज 0. आंसर इज 0. ठीक है, नेक्स्ट द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर reciprocals. Which are those rational numbers? ठीक है, that are equal to their reciprocals. Okay, अगर मैं लिखूँ 1 and -1, 1 का reciprocal is 1/1, -1 का reciprocal is -1/1. इन्वर्ट किया तो भी 1/-1. एक ही बात है ना, -1/1. So 1 and -1. ठीक, so answer is 1 and -1. This is the answer. ब्रैकेट में लिख लिया 1 and -1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. अभी ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है? सपोज 1 लेंगे तो 1 का नेगेटिव होगा -1, बट 1 and -1 दे आर नॉट इक्वल, तो विल राइट 0. क्यों 0? क्योंकि नेगेटिव 0 तो होता ही नहीं है, तो नेगेटिव करेंगे तो भी वो 0 ही रहेगा. ठीक है, 0 का नेगेटिव करेंगे तो भी वो 0 ही होगा, तो आंसर विल बी 0. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. 0 हैज़ रेसिप्रोकल. क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? मैंने पहले ही बताया 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. ठीक है, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक, नेक्स्ट, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. 1 and -1. 1 का भी रेसिप्रोकल 1 है एंड -1 का भी रेसिप्रोकल -1 है. द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल के लिए इसके क्या करते हैं, माइनस का साइन विल बी देयर एंड इसका इन्वर्ट करते हैं 1/5. द रेसिप्रोकल ऑफ, देखो ऑलरेडी ये 1/x है और यहाँ पे मेंशन है कि x डज नॉट इक्वल टू 0. यस, क्योंकि अगर x 0 हो गया डिनोमिनेटर में तो दैट विल बी इनफाइनाइट. तो चलो ठीक है, सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. अगर आपने दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट लिया तो ऑलवेज आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, याद है क्लोजर प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो मैंने बताया था. ठीक, सो रैशनल नंबर्स आर, याद करो स्टेटमेंट क्या था, रैशनल नंबर्स आर व्हाट, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. याद है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स वी विल बी गेटिंग रैशनल नंबर्स. ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहाँ पे बताया था इसके पहले वाले सम में. अगर 8 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/8. अगर -3 है सो -1/3. इफ वी हैव अ नेगेटिव नंबर सो वी विल गेट
negative in the reciprocal. If we have a positive number, so we'll get in a positive number in a reciprocal. So the reciprocal of a positive rational number is positive rational number. Again here you will write positive rational number, positive rational number. ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग. फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2. तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. वेरी सिंपल इज दिस. ओके, सो मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ दैट यू हैव टू रिमेंबर. सी वी हैव 7/4. ओके, तो वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन. तो विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 7/4 means what? When you divide 7/4, approximately 1 point something will come. 1 point something will come. आप एक लॉजिक यूज़ करना है आपको कि 7/4 का मतलब है कि 1 पॉइंट डिवाइड करने पे 1 point something will come. तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ. ठीक, 1 point something मतलब 1 के बाद आएगा. ठीक, चलो ठीक है. नाउ सी, ये आपको क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में 4. ओके, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 4. सो आफ्टर 0 1 विल कम, आफ्टर 1 2 विल कम, आफ्टर 2 3 विल कम, बट यू हैव टू मेक अ गैप ऑफ 3. मीन्स फोर्थ प्लेस पे 1 विल कम. 3 का गैप करके फोर्थ प्लेस पे 1 विल कम. जैसे 1 2 3 देन फोर्थ प्लेस पे 1 विल कम. ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स रहे 4, सो उस प्लेस पे यू हैव टू टेक द नेक्स्ट नंबर. जैसे यहाँ पे 4 है तो फोर्थ प्लेस पे 1 2 3, फोर्थ प्लेस पे 1 लेना है. देन 1 2 3, फोर्थ प्लेस पे 2 लेना है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर. ओके, जो भी यहाँ पे है. ओके, सो नाउ 1 मतलब वी कैन राइट इट 4/4. 0 वी कैन राइट 0/4 बिकॉज 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. 4/4 इज 1. एंड ये क्या होता है 8/4. ठीक, 8/4. तो ये देखो फिक्स है 4 4 4 एंड 4 का गैप है ना 1 2 3 4. तो 0 0 + 4 4 4 + 4 8. ओके, सो वी नीड 7/4. तो आफ्टर 4/4 5/4 6/4 7/4 विल कम. 7/4 विल कम एंड नीड नॉट टू राइट दीज ऑल. ये सब हटा दो. ठीक, ये आपको सिर्फ मैंने समझने के लिए बनाया था. ठीक है, अभी आप बोलोगे सर सपोज वी रिक्वायर हियर 13/4. ठीक है, अगर मुझे 13/4 चाहिए, ठीक है, वो रहने दो. 13/4 रिप्रेजेंट 13/4. सो व्हाट विल आई डू? अगेन आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. ठीक है, 13/4 वी नो दैट 4 3 = 12. 4 3 = 12. ये 12 से ज़्यादा है तो 3 से भी ज़्यादा होगा, मतलब 4 3 तो 3 से आगे आएगा. तो हियर वी विल टेक 0. 4 दिख रहा है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. ठीक, ओके. नाउ 0 क्या हो गया? डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है ना आपको, तो 0 इज व्हाट 0/4. ये क्या हो जाएगा 4/4. 4 4 का ये हो गया 8/4 एंड दिस इज 12/4 एंड दिस इज 16/4. 4 4 एड अप 4 आएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज है. ठीक है, बट यू रिक्वायर 13/4. तो आफ्टर 12/4 हियर इट कम्स 13/4. इन सबको आपको रब कर देंगे. ओके, नाउ विल कम फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. ये नेगेटिव दिख रहा है आपको -5/6 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद 0. 0 लिख लिया. सो यहाँ पे कितना है 6. सो आई राइट 1 2 3 4 5 6 -1. ठीक, देन अगेन 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे -2. करेक्ट. ओके, अभी देखो 5 जो है छोटे 6 से छोटा ही है, तो 6 1 जा नहीं जाके 0 जा ही जाएगा. 0 point something will come, मतलब वो 0 and 1 के बीच में ही होगा. ठीक है, सो हियर इट विल बी -1/6 -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6. बट ये सब नहीं चाहिए अपने को. वी रिक्वायर ओनली -5/6 बिकॉज ये क्या हो जाएगा 0/6. ये क्या हो जाएगा -6/6. नोटिस करो 0 0/6 एंड दिस विल बी -6/6. -6/6 इज -1 ओनली. तो आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में वी हैव 6, तो वी हैव टेकन
नेक्स्ट नंबर ऑन द 6th प्लेस, 0 के बाद अगला नंबर -1 है ऑन द लेफ्ट साइड, तो वो 6th प्लेस पे लिया, 1 2 3 4 5 6। -1 के बाद नेक्स्ट नंबर इज -2, वो हम लोग निकाल लिया। अगेन अगर सपोज आपको चाहिए होता है -10/6, ठीक, सो देखो -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 and this is -12/6, -12/6 is -2 only, correct? नोट कर लीजिए इसको। See the next question, question number 2. Represent -2/11, -5/11, -9/11 on a number line. Again we have to draw a number line. अभी आप नोटिस करो, सपोज यहाँ पे आपने ले लिया 0, ठीक, चेक द डिनोमिनेटर 11 11 11, सो 0 के बाद -1 विल कम, बट वो 11th प्लेस पे रहेगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1, ठीक, -1। नाउ वी नो दैट द 2/11 डिनोमिनेटर, सबका न्यूमिनेटर छोटा है, सो दे ऑल विल लाई बिटवीन 0 एंड -1, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। व्हेन यू विल डिवाइड 9/11 -0 पॉइंट समथिंग विल कम, मतलब 0 से लेफ्ट साइड एंड 0 एंड -1 के बीच में होंगे, ठीक है। सो दिस इज -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 0/11, एंड दिस इज -11/11, ओके। सबका डिनोमिनेटर सेम लेना है, एंड 0/11, 1/11 means -1/11, -2/11 and so on, finally -11/11. Next one is -5/11, तो -2, -3, -4, -5/11, 6 7 8 9, -9/11। Finished with this, ये लिखने की जरूरत नहीं है नीचे वाला पार्ट, ठीक। See the question number, write 5 rational number which are smaller than 2. So देखना है आपको कि आपको लिखना है कि 5 rational number which are smaller than 2. So we can write 2 as 10/5. Yes, we can write. देखो आप which are smaller than 2, 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखना है, तो 2 को we can write 12/6 भी लिख सकते हो, करेक्ट, सही है। You can write this. So 10/5 से छोटे क्या होंगे? 9/5, 8/5, 7/5, 6/5, 4/5, 3/5, हो गया, सिंपल। बिकॉज राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 क्या हो गया? 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आप बोलोगे सर दिस इज अ होल नंबर और नेचुरल नंबर, और ठीक है, और इंटीजर। सो आपको पता है जितने भी होल नंबर्स, रैशनल, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर होते हैं, सब रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज वी कैन राइट देम इन अपॉन 2/1। सो आपको क्या चाहिए? राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। सो वी कैन राइट 2 एज अ 10/5, 12/6 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप 12/6 लिखोगे तो उससे छोटा क्या क्या हो जाएगा? 11/6, 10/6 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये से छोटे हैं, ठीक। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड हाफ। अब यहाँ पर देखो, यू हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। तो सिंपली व्हाट विल यू डू? एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। आप उस डिनोमिनेटर को इक्वल करो, हमेशा याद रखना। सो हियर वी हैव -2/5, 1/2, तो 2 5 and 2, सो एलसीएम मेथड होता है ना। सो वी विल मेक द डिनोमिनेटर्स 10, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2, because whatever you multiplying in the denominator, same you have to multiply in numerator, okay। हो गया। so this will be -4/10 and this will be 5/10, ठीक। आपको पता है नंबर लाइन पे जब आप जाओगे, देखो 5/10, उसके पहले 4/10, ठीक। फिर क्योंकि यहाँ से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो ना, 5/10 के पहले क्या होगा? 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, -1/10, -2/10 एंड सो ऑन। तो देखो फर्स्ट, सो यहाँ से यहाँ आने में देखो, नोटिस करो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 5/10 है, ठीक, देन 4/10 आएगा, देन 3/10 आएगा। हम रफली राइटिंग दिस, हाँ, आपको समझाने के लिए। 1/10 आएगा, देन 0/10 विल कम, देन -1/10 विल कम, देन -2/10 विल कम, -3/10, -4/10,
10। आप बोलोगे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन मतलब इन दोनों को तो लेना नहीं है एक्सट्रीम्स को, दीज टू आर द एक्सट्रीम्स। देखा जाए तो -4/10 इज वॉट -2/5, ये लेना नहीं है। एंड हाफ इज वॉट 5/10, ये भी लेना नहीं है। ठीक, उनके बीच के नंबर से तो यू आर गेटिंग ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8, यू आर गेटिंग ओनली 8 नंबर्स। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वी आर गेटिंग ओनली 8 numbers and we require 10 rational numbers. So one more thing you can do, further you can multiply the denominator by 2. ठीक है, क्योंकि 1 से करेंगे तो 10 ही मिलेगा। So -4 into 2, 10 into 2, 5 into 2, 10 into 2. Now it comes -8/20 and 10/20। ठीक है, आप नॉट नेसेसरी कि विल मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने 2 से लिखा क्योंकि मुझे छोटा नंबर चाहिए था। ठीक है, आप 10 से भी कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्योंकि मुझे पता चल रहा है जब मुझे ऑलरेडी इनके बीच में 8 नंबर्स ऑलरेडी वी आर गेटिंग, तो आई विल मल्टीप्लाई ओनली बाय 2, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अभी आप नोटिस कर सकते हो -8/20 से बड़ा क्या है, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0 मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, 1/20, 2/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 3/20, 10। अभी वो 10/20 तक है, तो वी कैन मूव अप टू 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, बट 10 नंबर्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, सो विद दिस वी आर फिनिशिंग द चैप्टर। ओके, सो आप इसको कॉपी कर लीजिए।